آج سے بھی گھر ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ ہمارے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتا تھا۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا، مگر اسے بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر بھی مالک مکان لحاظ کرتا تھا، مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم نہیں لی تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں کافیت یعنی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی تھی، کبھی اچھا پہنا کبھی اچھا نہ کھایا، چھوٹی چھوٹی ناآسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہی۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیاں کے پودے اور دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی۔ برآمدے میں گملوں میں سدا بہار پودے لگا کر اس کو سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر یہ دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ ہم مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تیار کر ہی لیا تھا تو ناچارہ ابا کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتا امی آہستہ سے کہتی گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اس بات میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بدنصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈبے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے ابا کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس کئی مناسب گھر مناسب کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اپنی اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت اور بالکل نیا مکان ہے۔ جن لوگوں نے وہ مکان بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، مگر ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اسے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد بس اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر دیکھ لیں پھر کرایہ پوچھیے گا۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود
था। इस इलाके से कुछ दूर इस शख्स की स्टेट एजेंसी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए। वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहाँ तक लॉन था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल न होने की वजह से घास लंबी हो गई थी और पौधे तकरीबन सूख रहे थे। मगर घर बहुत शानदार था। 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम्स, इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? अब्बा सटपटा कर बोले, हम इस काबिल नहीं हैं कि इस बंगले का किराया अदा कर सकें। हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए। ये महल हम क्या करेंगे? साहब, आपको बताया ना कि मालिक मकान इसके किराए की फिक्र में नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि इस घर की देखभाल होती रहे, वरना इन्हें तो उल्टा चौकीदार को पैसे देकर रखना पड़ता। आप जितना किराया इस घर का दे रहे हैं, आप जहाँ आप रहते हैं इतना ही दे दीजिएगा। मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले किया है। क्या मतलब? मैं तो इस मकान के सिर्फ 1500 देता हूँ। अब्बा ने चुपती हुई निगाहों से इसे देखा। 1500? वो आदमी जरा चुप हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग घर की देखभाल तो सही रखेंगे ना? बाज़ लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से इसका भी जानने वाला था और इसी ने इस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है अब्बा, घर अच्छा है। अम्मी तो कितना ख्याल रखती हैं घर का। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को लेकर आएंगे, वो घर देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं बाइक पर फरा और सबा को स्टॉप तक छोड़ दिया करूँगा। मेरे लिए आप ज़्यादा दूर नहीं है। और क्या जवान बच्चे हो? इस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में बढ़ गए। इसके सिवा चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर भी दस्तयाब नहीं था तो किराया बहुत था। ठीक है, मैं कल आकर बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते में फिर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं। फिलहाल 4-5 बरस ताकि इनके आने की उम्मीद नहीं है। इस अरसे में मैं नौकरी वाला हो जाऊंगा तो हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम पुरजोश हो गई। अंधेरा ना हो जाता तो मैं अभी चली जाती, वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोल कर इस घर की तारीफें की और एक एक चीज को तफसील से बताया। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है तो लंबी मगर जल्दी मिल जाएगी। इन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीदेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बुनती रहीं और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थीं। अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर मिल नहीं रहा, फिर भी इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहाँ पहुँचे तो अम्मी की आंखें खुल गई। बहनें भी बहुत खुश हुईं। एक बहन बोली, हाय, यहाँ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर इनको मिल जाएगा। वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुशी रह सकती हूँ। फिर इनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहाँ भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है, शायद खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बराजी देखा तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बातें करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अम्मी बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती। मैं टब में पानी भर भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती रहती। इन्हें बागबानी का बहुत शौक था। घर बहुत जल्द निखर गया। हमने भी अभी तक न आसपास की आबादी को बगौर देखा था और न वहाँ रहने वालों के बारे में जाना था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाक़या था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी
चला गया। इसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गई। इन्होंने कहा कहीं से कोई वाल बंद हो गया है, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उसे बाल्टी में पानी भर कर दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलके का जायजा लिया। जो ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि उसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया, मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वाशर खराब हो गया है। इन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया। वाल्व बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, न शावर से पानी आ रहा था, न टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं नाचार बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मुंह धोने चला गया। मैं नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जिन्नात होंगे। मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बना रही तो मेरी बिल्ली ऐसे फूं फूं कर रही थी जैसे इसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वो तो बात का बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी गुर्रा रही थी। उसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दुम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही है। हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसे फूं फूं करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नजर आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। क्या? सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टैंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। उसने नल खोलकर दिखा दिया। वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नल के चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे इसमें कुछ पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज़ आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने जलाकर टैंक खोला मगर इसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया। इन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लाट से पानी भर कर लाया और सब ने मुंह धोया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। दोपहर को घर वापस आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैंने हैरान होकर चिल्लाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टैंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने। अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी, मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तो मैं गलत फहमी हो गई होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा और टैंक का ढकना उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मुअम्मा है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे, वो अब नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुला दिया तो धो लिया, वरना अब तो यूं ही घूमते थे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो इन्हें हमारे पास छोड़ गई। इन्हें आते हुए 1-2 रोज ही हुए थे कि कमरे से इनके चीखने की आवाज़ें आने लगी। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाती थी और इसका रुआं रुआं खड़ा हो जाता था,
इस तरह मामू के सर के बाल भी खड़े हुए थे। इनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा और अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गईं। कौन? मामू, कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया। इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग हैं। इन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का बिर्द करना शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था, फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। क्या वो जर्द हो गए। बोले 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लॉन में बैठा था। असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का तन लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में मैंने सांप निकल आया, मगर सांप से ज्यादा खौफनाक ये बात थी कि सांप किसी अनदेखे हाथ में था और कोई उसे रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मेरे हलक से कोई आवाज भी नहीं निकल सके और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। इस घर में कोई जरूर बला है, कोई आसेब है, कुछ भी है जरूर। हमें यह घर फौरन छोड़ देना चाहिए। मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते हुए मुझे गुमसुम हालत में देखा तो इधर ही चले आए। अब्बा पर मेरी जो ही नज़र पड़ी मैं खौफ से चिल्लाया, अब्बा सांप कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नजर आ रहा है, मगर मैं खला में देख देख कर इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नजर नहीं आ रहा था, सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा हाल में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सराहने जमा हो गए। अम्मी पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बड़बड़ाए, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था, लगता था। फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगा। मैं बोला, नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियाँ रख रही थी। इनमें से कोई भी कुछ ना बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थी। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। इनके साथ इनका बेटा भी था। वो इस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। उन्हें यह भी खबर नहीं थी कि हम ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी, बहन सच पूछिए तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती लाया है। ये कहता है खामखा इस घर को बदनाम किया हुआ है। चल कर देखें, 2 माह से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों, इस घर के बारे में क्या मशवरा है? मैंने पूछा। बेटा, इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिका। आज तो यह कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर देते हैं, मगर ये घर आसेब ज़दा है। इसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे, 2-3 मजदूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है कि ये सब कहानियाँ हैं, मुझे ज़बरदस्ती आपसे मिलवाने ले आया है, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली। अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी। मैं भी अंदर आया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते पानी के बजाय खून आ रहा था। खौफ से सब का बुरा हाल था। हम लोगों ने इसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि इनका फिर इरादा बदल गया था। इन्होंने अब्बू से कहा कि किसी बुजुर्ग से हिसार खिंचवा लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद इनके इस इरादे की खबर इस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसलिए सबको खून नजर आया और हमने घर छोड़ दिया।